Welcome back, all. So, previously we studied about the linkage and crossing over. Now we have to study actual Morgan's experiment, which shows the linkage and crossing over. Okay, so let us start. So, Morgan's experiment showing linkage and crossing over. Morgan used Drosophila fly fruit for his experiment. He used one insect called as Drosophila, which is also known as fruit fly. So, he used this insect for his experiment as Mendel used pea plant for his experiment. So Morgan carried out several dihybrid cross experiments. Dihybrid cross, when we use two characters together, जब हम दो character एक साथ study करते हैं, that cross is called as dihybrid cross. We had studied this in the case of Mendel also, right? He performed his experiment in fruit fly to study genes that are sex linked. That means कुछ ऐसे characters जिनके genes sex chromosomes में present होते हैं, that means X या Y chromosomes में present होते हैं. Generally what happens कि ये जो बाकी के traits होते हैं जिनमें हमारे बाकी जो कैरेक्टर्स है वो डिफाइन होते हैं, ऐसे वाले जो जीन्स होते हैं जनरली एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे नहीं. बिकॉज वाई क्रोमोसोम पे जनरली जो मेलनेस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, मेल डिफाइन करने वाले जो जीन्स होते हैं वही प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम्स पे. अदरवाइज बाकी ट्रेड्स को डिफाइन करने वाले जो जीन्स है दे कैन रिमेन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. इसलिए मोस्टली हम इसमें जो भी अब देखने वाले हैं इसमें वी विल फाइंड कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स एंड वी विल कंसिडर ओनली एक्स क्रोमोसोम्स फॉर एवरीथिंग, not Y chromosome. Okay, the crosses were similar to dihybrid cross as they carried out by Mendel in P. Now, why he used Drosophila insect for his experiment? We had seen why Mendel has used pea plant for his experiment. So let us see why Morgan has used Drosophila. So, contrasting traits are present in the Drosophila. जैसे हमने पी में भी देखा था कि contrasting characters थे, एक plant tall, एक plant short. Then pea पॉड का कलर अलग अलग, पी सीड्स का कलर अलग अलग. एवरीथिंग वॉज कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो सिमिलर थिंग हैपन्स विद द ड्रोसोफिला ऑल्सो. यहाँ पे भी बहुत कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मिलते हैं. जैसे कि आई कलर इफ यूल चूज देन या तो रेड रहेगा या तो वाइट रहेगा. बॉडी कलर ब्राउन मिलेगा या येलो मिलेगा. विंग साइज या तो आपको मिनीचर मिलेगा, छोटा मिलेगा, या फिर बड़ा मिलेगा, लार्ज मिलेगा. सो दिस इज हाउ दिस हैज़ very contrasting characters, very contrasting traits. Okay, this is character, eye color, and these are the traits. So contrasting traits are present of a character. Short lifespan होता है, 2 weeks के अंदर Drosophila can grow and can reproduce also. ठीक है, that is why he used this Drosophila. P also, P के साथ भी same case था, right? कैन बी ईजिली कल्चर्ड इन लेबॉर्ट्री. लैब में हम ईजिली इसे कल्चर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. देर इज़ अ हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, राइट. मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं. मेल और फीमेल ईजिली वी कैन रिकग्नाइज, पहचाने जा सकते हैं. ठीक है, मेल जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं एंड फीमेल जो होती है थोड़ी लार्ज होती है साइज में. सो दिस इज हाउ मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिस्टिंक्ट एंड कैन बी easily identified in when we are studying them. So because of these characters, Morgan used Drosophila insect for his experiment. Morgan and his group crossed yellow-bodied, white-eyed female to the wild type with brown-bodied, red-eyed males and intercrossed their F1 progeny. Now, first of all, let us understand what wild type is. Wild type is the dominant trait.
in Mendel's experiment we had seen recessive and dominant trait. तो यहाँ पे जब डोमिनेंट की हम बात करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज वाइल्ड टाइप. ठीक है, वाइल्ड टाइप का मतलब यहाँ पे डोमिनेंट. ओके, हैविंग डोमिनेंट कैरेक्टर्स. तो यहाँ लाइक मॉर्गन ही चूज टू कैरेक्टर्स टुगेदर. तो वाइल्ड टाइप में मतलब डोमिनेंट ट्रेट में ही यूज्ड ब्राउन बॉडी वाले इंसेक्ट विथ रेड आई. ठीक है, लाल आंखों वाले ब्राउन कलर के इंसेक्ट उसने चूज किए जो डोमिनेंट है, वाइल्ड टाइप है. ठीक है, एंड रेसेसिव में क्या आएगा देन? येलो बॉडी वाले, वाइट आंखों वाले. ठीक है, ही क्रॉस्ड दीज टू टाइप ऑफ insects and he found F1 progeny that we will see. Now the symbol used by the Morgan when he was talking about the wild type or the dominant type, then he denoted it by plus sign. Okay, in Mendel case we have seen capital and small symbols were used, but here he is using plus sign. Okay, like brown bodied है तो y प्लस आएगा और येलो बॉडीड सिंपली स्मॉल y लिखेंगे हम. रेड आइड है तो कैपिटल W के साथ यहाँ प्लस साइन भी आएगा. वाइट आइड है तो स्मॉल W, सिंपल W विदाउट साइन. लार्ज विंग है तो M प्लस आएगा. मिनिएचर छोटे विंग्स है तो small y, simple small y without sign. So this is how he segregated or he used certain symbols for wild type, or you can say dominant type and recessive type. Okay, so first before studying the dihybrid cross, let us see an example of monohybrid cross. यहाँ पे this is P1 P generation, that means parental generation. Here he used W plus, that means red eyed इंसेक्ट, लाल आंखों वाले इंसेक्ट है. और यहाँ पे अदर पेरेंट इज ऑफ वाइट आई. ठीक है, जो मेल है वो वाइट आंखों वाला है और जो फीमेल है वो रेड आंखों वाली है. दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव. ठीक है, नाउ लेट अस मेक द गामेट्स. यहाँ पे दोनों एक जैसे क्रोमोसोम्स है, एक जैसे जीन्स है, तो वी विल जस्ट राइट वंस. यहाँ पे हमने W प्लस लिख दिया. ठीक है, जब हम पनेट स्क्वायर बना रहे हैं, गैमेट्स बना रहे हैं. ठीक है, एक ये गैमेट आ गया और यहाँ पे दोनों अलग अलग गैमेट है. एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, तो हमने यहाँ लिख दिए, यहाँ बना लिए. ठीक है, अब नाउ लेट अस मेक द कॉम्बिनेशन. इसके साथ ये इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ यू कैन सी W प्लस और W आ गया. W प्लस है मतलब डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप है, तो यहाँ पे रेड आइड फीमेल हमें मिलेगी. ठीक है, ये वाई क्रोमोसोम्स इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ चला गया. दिस यू कैन सी. अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम क्यों नहीं शो कर रहे हैं? बिकॉज बाकी जो ट्रेट्स होते हैं, जैसे ये आंखों वाला जो ट्रेट है, ये वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा. ये इसलिए हमने इस वाई क्रोमोसोम पे कुछ भी शो नहीं किया है. ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम पे आ गया W प्लस, तो इट मीन्स रेड आइड मेल यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, ये रेड आई वाली फीमेल है, ये रेड आई वाला मेल है. ओके, सो ये कॉम्बिनेशन हमें F1 जनरेशन में मिला. दोनों डोमिनेंट है, वाइल्ड टाइप है. ठीक है, रेड रेड आ गए, रेड आई F1 जनरेशन में. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमें F1 जनरेशन में नहीं मिला. दैट मीन्स वाइट आई वाला कॉम्बिनेशन हमें F1 जनरेशन में नहीं मिला. नाउ लेट अस क्रॉस दीज टू. इस फीमेल को इस मेल के साथ फिर से क्रॉस करते हैं फॉर F2 जनरेशन. ये देखिए, इसके गामेट्स यहाँ आ गए. ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, इसके दो गामेट्स हमने बना लिए. इस गामेट में आ गया ये W प्लस वाला क्रोमोसोम, इसमें आ गया Y क्रोमोसोम. नाउ लेट अस क्रॉस दीज टू. इसके साथ ये चला जाएगा. हियर यू कैन सी W प्लस दोनों पे है, मतलब रेड आई वाली फीमेल बनी. ओके, देन ये इसके साथ चला गया. ये ब्लू यहाँ पे आ गया विथ स्मॉल W, ये आ गया विथ W प्लस. अब W प्लस यहाँ पे है, दैट मीन्स ये रेड आई वाली फीमेल ही बनेगी. नाउ लेट अस डू हियर ऑल्सो. ये
अम, ये इस वाई क्रोमोसोम के साथ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे W+ आ गया, दैट मीन्स अगेन रेड आई मेल, ठीक है। वाई क्रोमोसोम है यहाँ पे इसलिए मेल। और यहाँ ये इसके साथ चला गया, मतलब स्मॉल w है विदाउट साइन, और वाई क्रोमोसोम है मतलब ये वाइट आई वाला मेल हमें मिल गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल गेट अ कॉम्बिनेशन। 3 हमें रेड कलर, आई का कलर हमें रेड मिल गया, और एक हमें मिल गया वाइट आई वाला मेल, ठीक है। 2 फीमेल 2 मेल, जिसमें से 2 मेल और एक 2 फीमेल और एक मेल की आंखों का कलर क्या है, रेड है, और एक मेल जो है उसके आंखों का कलर वाइट है। ये कॉम्बिनेशन हमें फिर से F2 जनरेशन में मिल गया, ठीक है। हमने ये सब मेंडल के केस में भी देखा था, राइट। नाउ लेट अस डू द डायहाइब्रिड क्रॉस। लेट अस चूज 2 डिफरेंट ट्रेट्स, ओके। सो यहाँ हमने लिया है येलो बॉडीड वाइट आई, ये क्या है, फीमेल है, फीमेल विथ ऑल रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। विदाउट साइन हमें ये जीन्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये रेसेसिव है, फीमेल है, येलो बॉडी है एंड वाइट आई है, ठीक है। ये मेल है, वाइल्ड टाइप मेल है, एक्स क्रोमोसोम पे यू कैन सी प्लस वाले जीन्स प्रेजेंट है, तो ब्राउन बॉडी है और रेड आई है, ओके। लेट अस मेक गामेट्स, दीज आर द गामेट्स। ये एक जैसा ही है इसलिए हमने एक ही बार लिखा, और ये हमने यहाँ एक्स क्रोमोसोम लिखा है, इस गैमेट में एक्स क्रोमोसोम डाला है, इस गैमेट में हमने वाई क्रोमोसोम डाला है। लेट अस मेक कॉम्बिनेशन, ये इसके साथ चला जाएगा, हियर यू कैन सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस प्लस वाला इसके साथ है, दैट मीन्स ये जो फीमेल बनेगी ना, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम है, तो ये जो फीमेल बनेगी दैट विल बी ब्राउन एंड रेड, ठीक है। ब्राउन बॉडी होगी एंड रेड आंखें होगी इस फीमेल की। अब ये वाई क्रोमोसोम इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ चला गया। अब यहाँ पे यू कैन सी रेसेसिव कैरेक्टर्स है, तो येलो बॉडी होगी एंड वाइट आंखें होंगी इस मेल की, ठीक है। एक हमें फीमेल मिली, एक हमें मेल मिला, तो फीमेल जो है वो वाइल्ड टाइप में आ गई अब, और जो मेल है वो रेसेसिव बन गया, ठीक है। यहाँ देखिए यही वाले कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, वाइल्ड टाइप फीमेल है एंड रेसेसिव हमारे पास अब मेल है, ठीक है। नाउ लेट अस क्रॉस दिस फीमेल विद दिस मेल, ओके। लेट अस सी हियर, हमने गैमेट्स बना लिए। अब ये दोनों एक जैसे नहीं है, एक डोमिनेंट जीन्स के साथ है, वाइल्ड टाइप के साथ है, एक रेसेसिव के साथ है, इसलिए हमने 2 गैमेट्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 गैमेट्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स चले गए। नाउ इसके फीमेल है तो एग्स, हमने यहाँ गैमेट्स लिख दिए, ये 2 गैमेट्स यहाँ चले गए। अब नाउ लेट अस मेक द कॉम्बिनेशन, ये इसके साथ जाएगा पहले, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन सी दोनों रेसेसिव है, दोनों क्रोमोसोम्स पे रेसेसिव जीन्स आ गए, तो क्या होगा, येलो बॉडी वाइट आई वाली फीमेल बनेगी, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, यहाँ ये क्रोमोसोम इसके साथ चला गया वाई क्रोमोसोम के साथ, अगेन हमें क्या मिलेगा, मेल मिलेगा, बट ये भी क्या रहेगा, वाई येलो एंड वाइट वाला कॉम्बिनेशन लेके आएगा, ठीक है। ये फीमेल विथ रेसेसिव कैरेक्टर्स, ये मेल विथ रेसेसिव कैरेक्टर। अब इसका इसके साथ कराते हैं, ये आ गया। अब यू कैन सी यहाँ दोनों एक्स क्रोमोसोम है, मतलब ये फीमेल है अगेन, यहाँ पे यू कैन सी प्लस प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा, ब्राउन बॉडीड रेड आई वाली फीमेल बनेगी, ठीक है। और ये इसका अगेन इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यहाँ पे मेल बनेगा, प्लस प्लस साइन है इसलिए क्या होगा, ब्राउन बॉडी रेड आंखों वाला मेल बनेगा, ठीक है। एक वाइल्ड टाइप की हमें फीमेल मिलेगी, एक वाइल्ड टाइप का हमें मेल मिलेगा, और 2 हमें क्या मिलेंगे, रेसेसिव कैरेक्टर्स वाले इंसेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक फीमेल होगी एक मेल होगा, ठीक है। लेट अस सी द कॉम्बिनेशंस।
ये पैरेंटल टाइप यू कैन सी, येलो वाइट फीमेल एंड मेल हमें दोनों मिल गए। ये देखिए येलो वाइट कॉम्बिनेशन वाले एक मेल एक फीमेल है, एक मेल है, और ब्राउन रेड फीमेल एंड मेल हमें मिलेंगे। ब्राउन रेड दैट मीन्स वाइल्ड टाइप वाले एक फीमेल मिली, एक मेल मिला। अब ये तो हो गया अबाउट द पैरेंटल कॉम्बिनेशन। Okay, now we had studied in our previous video about the crossing over also. Now what if the crossing over occurs between these chromosomes during meiosis 1? ठीक है, meiosis में अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब क्या हो सकता है कि ये पार्ट जो है वो यहाँ चला जाए और ये जो पार्ट है ये यहाँ आ जाए, ये एक्सचेंज होगा। ठीक है, मतलब ये जो स्मॉल y है ये यहाँ आ गया और ये जो स्मॉल w है ये कैपिटल सॉरी प्लस साइन वाला जो है यहाँ चला गया। तो दिस इज हाउ एक्सचेंज कैन हैपन, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इफ दैट थिंग हैपन ओवर हियर देन व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस विल गेट, लेट अस सी। देखिए यहाँ पे ये जो है ये एज इट इज़ हमने गैमेट्स लिख दिए बिकॉज यहाँ पे एक्सचेंज होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स पे ये जीन्स हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर या फिर इंटरचेंज जीन्स के बीच में नहीं हो पाएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बिकॉज एक्स एक्स क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, एंड इवन द जीन्स आर प्रेजेंट फॉर द सेम ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस है, और अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो दीज कॉम्बिनेशंस वी कैन गेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो वाई पार्ट है ब्लू पार्ट जो है वो इस वाले पे चला जाएगा, हियर यू कैन सी वाई प्लस यहाँ पे आ गया, और ये जो पार्ट है ये टूट के इस वाले पे आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, स्मॉल वाई आ गया। ठीक है, तो अब इस क्रोमोसोम पे इस एक्स क्रोमोसोम पे ये वाई प्लस आ गया, इस पे क्या आ गया, स्मॉल वाई आ गया। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे वाई प्लस है मतलब ब्राउन बॉडी आ गई, ब्राउन बॉडी विथ वाइट आई, ये ब्राउन बॉडी विथ वाइट आई। यहाँ पे क्या हो गया, येलो बॉडी विथ रेड आई। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्रॉसिंग ओवर करते हैं, हमें क्या क्या मिल सकता है। देखिए रिकॉम्बिनेंट टाइप में ब्राउन वाइट मेल एंड फीमेल हमें मिलेंगी। यहाँ पे वाइल्ड टाइप पे देखिए ब्राउन रेड था, बट हमें अभी क्या मिल सकता है, रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ब्राउन बॉडी के साथ क्या चला जाएगा, वाइट आई, बिकॉज यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो गई है। ये देखिए ब्राउन then we'll get yellow and red female and male. See here, यहाँ yellow with red, ठीक है, येलो बॉडी विथ रेड आई, यहाँ ब्राउन बॉडी विथ वाइट आई। ठीक है, ब्राउन बॉडी विथ वाइट आई एंड येलो बॉडी विथ रेड आई, ये कॉम्बिनेशन बने। तो अब चांसेस क्या है, देखिए इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वाई प्लस है, दैट मीन्स वाई प्लस का मीनिंग क्या हो गया, ब्राउन बॉडी बनेगी। ठीक है, और यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू है, स्मॉल स्मॉल है, विदाउट साइन है, तो वाइट आई बनेगी। ठीक है, ये ब्राउन बॉडी वाइट आई फीमेल बनी। ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी बनेगा, मेल आएगा यहाँ पे इसी कॉम्बिनेशन के साथ ब्राउन, ये ब्राउन कलर वाई प्लस के लिए ब्राउन कलर और स्मॉल डब्ल्यू के लिए वाइट आई। ठीक है, एक ब्राउन वाइट फीमेल हमें मिली, एक ब्राउन वाइट मेल हमें मिला। अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन करते हैं। ये डब्ल्यू प्लस है, ये स्मॉल वाई दोनों जगह है, दैट मीन्स येलो बॉडी आ जाएगी। ठीक है, और ये प्लस साइन है मतलब रेड आई आ जाएगी। तो हमें येलो बॉडी रेड आई वाली फीमेल मिली, और इसी कॉम्बिनेशन की हमें अब एक मेल मिलेगा, येलो बॉडी
with red eye वाला male. So इस तरह से again we can get two more female, two more male with different combination, recombinant now. पैरेंटल में क्या था, येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन था और ब्राउन और रेड का कॉम्बिनेशन था. यहाँ पे क्या हो गया है, ये ब्राउन वाइट के साथ चला गया है, ये येलो रेड के साथ चला गया है. देखिए येलो रेड, ब्राउन वाइट, ठीक है, एक्सचेंज इंटरचेंज हो गया है जीन्स का. सो दिस इज हाउ मेंडल ही मॉर्गन परफॉर्म्ड his experiment of two characters, and what he found was we can get फोर टाइप ऑफ गैमेट्स, जिसमें से हमें एक दो तीन चार चार फीमेल्स मिलेंगी, जिसमें से दो पेरेंटल टाइप की होगी, दो रिकॉम्बिनेंट हो सकती है. इवन विल गेट फोर मेल्स, जिसमें से दो जो है वो पेरेंटल होंगे और दो रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं. ठीक है. Results are somewhat different from what we found in Mendel's case. How? That we will see later on. यहाँ पे भी यू कैन सी येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल है, सेम एग्जाम्पल दैट वी हैव सीन, बट ये एक साथ दिखाया है ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल वाइल्ड टाइप है. ठीक है. एंड अगेन चार पैरेंटल केसेस हमें मिल रहे हैं. ठीक है. ये चारों मेल है, जिसमें से ये जो है ये दोनों पैरेंटल हैं, ये दो रिकॉम्बिनेंट है. यहाँ पे भी चार फीमेल मिल रही हैं, जिसमें से ये दो पैरेंटल हैं और ये दो रिकॉम्बिनेंट हैं. ठीक है. यहाँ पे दो क्रॉसेस दिखाए हैं, क्रॉस ए क्रॉस बी. जैसे यहाँ पे हमने लिया था रेड वाइट इंसेक्ट, यहाँ पे हमने लिया था वाइल्ड टाइप में ब्राउन रेड इंसेक्ट. ठीक है. यहाँ दूसरे कैरेक्टर्स लिए गए हैं, जैसे यहाँ वाइट आंखें विथ स्मॉल विंग्स. ठीक है. यहाँ आई कलर और विंग्स, ये दो कैरेक्टर लिए गए हैं. ओके, विंग्स और आई कैरेक्टर. तो अगेन यहाँ पे F1 जनरेशन हमें मिल रहा है, जिसमें पहले क्या था, वाइल्ड टाइप मेल था, अब वाइल्ड टाइप में क्या आ गया, डोमिनेंट फीमेल बन गई है और रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ मेल आ गया है. इन दोनों का जब हम क्रॉसिंग कराते हैं देन वी कैन गेट फोर पैरेंटल टाइप, फोर रिकॉम्बिनेंट टाइप. फोर पैरेंटल में क्या होगा, हमें दो मेल मिलेंगी, दो फीमेल मिलेंगी, जिसमें से दो मेल जो है वो वाइल्ड टाइप के कॉम्बिनेशन को ले आएंगे और जो दो मेल और एक रिसेसिव कैरेक्टर के साथ हमें एक मेल मिलेगा, एक फीमेल मिलेगा. और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहे हैं. ठीक है. मतलब यहाँ पे वाइट के साथ कैरेक्टर्स का एक्सचेंज हो गया है. ठीक है. रिकॉम्बिनेंट्स हमें मिल गए हैं. ओके. यहाँ पे जैसे यू कैन सी दिस इज द मेल, मेल जो है वो वाइट और लार्ज विंग के साथ आ गया. ओके. और ये रेड आई छोटे विंग्स के साथ आ गया. तो दिस इज हाउ रिकॉम्बिनेशन बन गया है. ठीक है. यहाँ पे यू कैन सी इसका इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इस पे आ गया है, इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इस वाले क्रोमोसोम का इस पे आ गया. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट फोर recombinants also. Now, what were the observations of Morgan's experiment? The two genes did not segregate independently of each other, and F2 ratio deviated very significantly from 9 is to 3 is to 3 is to 1 ratio. In Mendel's case, we had seen after dihybrid cross, we got this combination of phenotype. ठीक है. इस कॉम्बिनेशन का हमें फिनोटाइप मिला था 9:3:3:1. बट जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसका जो रिजल्ट था वो ये नहीं था. दैट मीन्स वी सॉ द थर्ड लॉ गिवन बाय द मेंडल, उसमें बोला गया था कि ईच कैरेक्टर और ईच ट्रेट इट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. Okay, but here you will not get independent assortment. Proper segregation genes के बीच में नहीं हो पाता है. We have seen that recombinants are also possible there. 100% parental हमें मिले ये ज़रूरी नहीं है, recombination के chances भी होते हैं. That is why Morgan did not get this ratio again. Morgan and his group knew that the genes were located on X chromosome and stated that when two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, then the proportion of parental combination is
इज मच हायर दैन नॉन पेरेंटल टाइप। मतलब जो पेरेंटल टाइप है वो कॉम्बिनेशन हमें ज़्यादा मिलेगा, हमने देखा था 80% मिलता है जनरली, ठीक है। एंड जो नॉन पेरेंटल है उसके चांसेस 20% होते हैं। ओके, दिस अकर्स ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स। लिंकेज कितना पास कितने दूर है, दैट gives the result. He also found that when genes are grouped on same chromosome, some genes are strongly linked, separate नहीं होते एक दूसरे से, ठीक है। Any case can happen. Very, they show very few recombinants. That means सिर्फ 1.3% ही recombinants मिलते हैं when genes are closely linked, that is present far away, loosely linked, sorry, that is present far away from each other on chromosome, they show more recombinants. अगर जीन्स पास पास हैं तो सिर्फ यही कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन हमें मिलेगा, 1.3% ही मिलेगा। बट अगर जीन्स जो है वो दूर दूर है एक दूसरे से, लूजली लिंक्ड है, तो हमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दैट इज 37.2% होते हैं। ओके, सो दिस वर दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ मॉर्गन। मेंडल ने जो किया था 9:3:3 3:1 डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद, वो उसे नहीं मिला। ही फाउंड कि अगर जीन्स बहुत क्लोज है एक दूसरे से तो रिकॉम्बिनेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर दूर दूर है जीन्स तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द मॉर्गन। एंड नाउ in our next video we will study about the various disorders because of these sex linked genes.